Hi everyone, in this video we are going to discuss how my life has changed after quitting a full-time job and what are the pros and cons of leaving a job and getting into entrepreneurship. Just because I have left my full-time job doesn't mean that you also need to leave the same. It's a very personal decision and I think that बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार जॉब कब छोड़ना चाहिए या तो कैसे छोड़ना चाहिए and what are some of the factors to decide whether to leave a job and just go into entrepreneurship or not. So that's why I thought I'll make a detailed video on the same discussing about that topic. There are some people who are doing job in their lives and वो लोग jealous हो गए of entrepreneurs because they would think that यार इनकी लाइफ में कितना फ्रीडम है, इनको छुट्टी मांगनी नहीं पड़ती है, ये लोग खुद के बॉस है. एंड देयर आर एंटरप्रेन्योर्स हु आर जेलस ऑफ सम एम्प्लॉइज बिकॉज दे वुड बी थिंकिंग दैट यार इनकी लाइफ कितनी स्टेबल है, हर महीने में सैलरी क्रेडिट हो जाती है मंथ एंड पे एंड कितनी स्टेबिलिटी रहती है इनके लाइफ में. सो आई थिंक पर्सपेक्टिव्स आर वेरी वेरी डिफरेंट एंड इन दिस वीडियो लेट्स डिटेल आउट एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ माई लाइफ हैज चेंज्ड एंड व्हाट आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लीविंग अ फुल टाइम जॉब एज वेल. बट बिफोर वी बिगिन I'd like to thank PW for sponsoring this video. They're coming up with a CA intermediate batch called Udesh which has started from 17 July valid for November 2023 attempt students. The faculties who are teaching have already had an amazing record of having 198 rank holders in total and one of the students had also scored 99 out of 100 in costing subject. They have a teaching experience of 10 plus years. They are offering fast track batches for both groups with a test series at just rupees 8,000 itself. Well, they've also launched a CA foundation batch called Sampurna that has started from 15th of July and for both the batches there will be live as well as recorded classes and every Sunday practice tests for 2 subjects will be provided. There will also be a live doubt solving session happening every week. If you are someone who's looking for CA coaching, click on the link given in the description box and use my code that is KL250 to get rupees 250 off on your purchase. So coming back to the topic, right, जब मैं full time job कर रहा था it was not possible for me to attend these events and conferences as a guest speaker and हमेशा मुझे permission मांगना पड़ता था. In fact बहुत सारे creator meetups होते हैं, creator events होते हैं and every time I used to ask my manager और boss कि मुझे ये event में जाना है तो it used to feel like यार मैं कितनी छुट्टी मांग रहा हूँ. For example मैं Unlocking Unicorn Secrets book जब लिख रहा था तब every month I had to travel to Bangalore or Delhi because most of the unicorn founders reside there and it was not really feasible for me to ask leave each and every time. तो ये कौन होता है कि आपको परमिशन हमेशा मांगनी पड़ती है. जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे बहुत डर लगता था. इनफैक्ट मैं जब आदित्य बिरला ग्रुप ज्वाइन किया था पहले 4 महीने का जो स्टिंट था एट आदित्य बिरला कैपिटल आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ माय मैनेजर एंड आई यूज्ड टू फील वेरी स्कैर्ड जब मुझे उनका कॉल आता था या तो ईमेल भी आता था. याद है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का एक ये होता है साउंड होता है जहां पर ईमेल आता है तो आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है. तो जब भी वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ईमेल आता था जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे इतना डर लगता था कि अरे यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी. और जब मेरे मैनेजर का कॉल आता था मेरे फोन पे आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्कैर्ड ऑनेस्टली. आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप ऑफिस जाने के पहले सुबह बहुत डर लगता होगा या तो आपको आपके बॉसेस चिल्लाते भी होंगे जब आप लेट पहुंचते हो ऑफिस में. सो आई थिंक वो जॉब में एक डर होता ही है हमेशा कि यू हैव टू रिपोर्ट टू समवन एंड अगर आप छोटी सी छोटी गलती भी कर दो ना तो आपको शायद बहुत ज्यादा स्कोल्डिंग्स भी मिल सकती है. बट हाउएवर एक स्टेबिलिटी होती है. जब आप जॉब करते हो तो सैलरी हमेशा हर मंथ के एंड में क्रेडिट होती है तो आप वीकेंड्स पे बाहर जा सकते हो, आप अकॉर्डिंगली आपके खर्चे प्लान कर सकते हो एंड आई थिंक जब एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम रहता है ना तो आपके लाइफ में बहुत सर्टेनिटी रहती है और कोई प्रेशर नहीं रहता है किसी भी तरह का. फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी थी रुपीज 18.25 lakhs इन द फर्स्ट ईयर एट आदित्य बिरला ग्रुप. तो मुझे पता था कि हर महीने मुझे 1.5 लाख रुपए तो क्रेडिट होने ही वाले बैंक अकाउंट में एंड एक बार वो क्रेडिट हो जाए तो मेरे ऊपर है कि मुझे कैसे खर्चे करने, एक्सपेंसेस क्या रखने एंड मैं इंश्योर करता था कि थोड़ा सरप्लस तो बचा रहे ताकि मैं वो इन्वेस्ट कर दूं या तो बैंक में या तो स्टॉक मार्केट्स में. तो हर वीकेंड में दोस्तों के साथ बाहर जाता था और हमेशा दिमाग में ऐसा रहता था कि यार चलो पैसे तो क्रेडिट हो रहे तो मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है और ये पैसे जो है वो मिनिमम है, मतलब सैलरी इससे बढ़ने ही वाली, इससे कम नहीं होने वाली है. सो दैट इज वन वेरी की फैक्टर ऑफ अ जॉब दैट यू डोंट हैव एनी प्रेशर एट योर बैक कि यार अगर पैसे नहीं हुए तो क्या करूंगा. आपको उसी सैलरी के ऊपर हाउसिंग लोन मिल सकता है, पर्सनल लोन मिल सकता है, आप EMI पेमेंट्स कर सकते हो और बहुत सारे एडवांटेजेस भी है. नाउ लेट्स गो टू एंटरप्रेन्योरशिप राइट. जब से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में प्लंज लिया राइट तो ये सब इवेंट्स में जाना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना ये सब बहुत ईजी हो गया. लाइक आई एम द किंग ऑफ माई ओन लाइफ एज इफ आई फील दैट एंड ये सब इवेंट्स में जब मैं जाता हूँ तब मुझे कोई परमिशन नहीं मांगनी पड़ती है. नॉट ओनली दैट अगर मैं कोई दूसरे शहर में जाता हूँ कोई इंटरव्यू के पर्पस के हिसाब से या तो कोई काम के पर्पस के हिसाब से तो आई डोंट हैव टू आस्क एनी परमिशन फ्रॉम माई बॉसेस और मैनेजर्स बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन टू रिपोर्ट एज ऑफ नाउ. ऑल्दो इट्स नॉट ट्रू दैट यू डोंट हैव टू रिपोर्ट एनीवन इफ यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज यू आर लायबल टू योर कस्टमर्स, यू आर लायबल टू योर एम्प्लॉइज, यू आर लायबल टू योर इन्वेस्टर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल. ऐसा नहीं कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए तो आपका कोई बॉस नहीं है, ये सारे आपके बॉसेस ही है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, एम्प्लॉइज हो, शेयर होल्डर्स हो या कोई भी स्टेक होल्डर्स हो. एक और बात है कि अभी मुझे कोई ऐसे डर नहीं लगता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉल आता है तो मैं खुशी खुशी उठा लेता हूँ. लाइक मेरे कलीग्स का अगर कोई कॉल आता है तो आई एम नॉट स्कैर्ड कि यार चलो मुझे ऑफिस पहुंचना है या अगर मैं थोड़ा लेट भी पहुंच गया ऑफिस तो मुझे किसी की डांट नहीं सुननी पड़ती. ऑल्दो आई एंश्योर दैट आई रीच ऑफिस ऑन टाइम, आई स्टार्ट माई वर्क एट 9:30 AM बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है एट द बैक ऑफ माई माइंड जो कि जॉब में हमेशा होता था. एंड द लास्ट एडवांटेज इज दैट आपका माइंड इतना ब्रॉडन हो जाता है ना बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज, न्यू इनिशिएटिव्स कि इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं. तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है ना वो आपको बहुत चीजें सिखाता है. जॉब में क्या होता है कि आपको शायद स्पून फीडिंग भी दिया जा सकता है तो वो बहुत डेंजरस होता है मेरे हिसाब से. और एंटरप्रेन्योरशिप में आपको सारी चीजें खुद से ही करनी, हायरिंग हो गए, फाइनेंसेस संभालना हो गया, टेक का कोई बंदा ढूंढना हो गया टू क्रिएट योर वेबसाइट और एप्लीकेशन, सारा फ्रॉम E to Z आपको खुद ही करना पड़ता
सकता है. तो this broadens your horizon and this helps you in order to become more like a problem solver rather than a problem finder. However, entrepreneurship के भी कुछ disadvantages होते हैं. जैसे for example, हर weekend आपको काम तो करना ही पड़ेगा because you have to ensure that all your customers are satisfied. Specifically for me, जहाँ पर हमारे courses जो होते हैं वो weekend पे ही होते हैं, तो पूरे colleagues और पूरे staff जो मेरा है वो weekend पे काम करता है and then I have to give them off on Monday. Although I don't take an off on Monday, but I have to ensure I am giving them an off. और इसमें सैलरी क्रेडिट नहीं होती है हर महीने के एंड में, तो कभी कभी इनकम कम भी हो सकती है, कभी कभी इनकम ज्यादा भी हो सकती है. ऑल्दो वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना सैलरी दिया है स्टाफ को एक्सेट्रा. बट इसमें ऑल माई पॉइंट इज दैट आपको स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है. इनिशियली फॉर द फर्स्ट 6 months और 10 months यू कैन नॉट इवन विड्रॉ एनी सैलरी फ्रॉम द कंपनी बिकॉज आप प्रॉफिटेबली नहीं हो, तो आप सैलरी कैसे विड्रॉ करोगे. सो दैट इज वन की फैक्टर जहाँ पे आपको वीकेंड्स पे भी काम करना है, वीकडेज पे भी काम करना है. एंड वो जो पहले था कि मैं वीकेंड पे दोस्तों के साथ बाहर जाता था, अभी बहुत कम हो गया. इनफैक्ट अभी नेग्लिजिबल हो गया बिकॉज आई कंट्रोल माई एक्सपेंसेस. मुझे इंश्योर करना है कि जो मेरे एक्सपेंसेस है वो सिर्फ नेसेसिटीज में जाए, चाहे रेंटल हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फूड हो गया, तो उसी में मैं खर्चा करता हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी स्केप्टिकल एंड कॉशियस अबाउट द फैक्ट कि मैं कोई अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आप सबको बता देता हूँ कि अगर मुझे कभी उबर भी लेनी पड़ती है, अगर मुझे कोई दूसरे साइड ट्रैवल करना पड़ता है बॉम्बे के, तो कभी कभी दिमाग में ऐसा आता है अरे यार अभी 400-500 रुपीज लग जाएगा कैब के लिए, या तो मैं कैसे इसको अवॉइड कर सकता हूँ, कैसे मैं लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट में जा सकता हूँ. तो वैसा माइंडसेट हो गया जो पहले ऐसा माइंडसेट नहीं था बिकॉज स्टेबिलिटी थी इनकम की. सो आई थिंक दिस इज गुड ऑल्सो बिकॉज यू आर माइंडफुल ऑफ योर एक्सपेंसेस विच यू आर ब्रेकिंग. सो लेट मी शेयर वन थिंग राइट. अगर मेरे इनकम पहले 18.25 लाख पर एनम था, तो 1.5 लाख में मेरा खर्चा जाता था, 40,000 में रेंट पे जाता था, 10 से 15,000 कुक की सैलरी होती थी, अनदर 10,000 यूज्ड टू गो फॉर ग्रोसरीज एंड ऑल. फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था 3 से 5,000 के करीब, एंड कुछ अदर एक्सपेंसेस होते होंगे जो मैं बाहर जाता था फ्रेंड्स के साथ, तो 1,000 पर वीकेंड डिनर के हिसाब से 4,000 पर मंथ का वो एक्सपेंडिचर होता था, और लॉन्ड्री के हिसाब से कुछ 1,000-1,500 का एक्सपेंडिचर होता था. सो स्टिल आई यूज्ड टू इन्वेस्ट अराउंड 50,000 to 70,000 पर मंथ इन एफडीज और इन स्टॉक मार्केट सो दैट आई हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हेन आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. तो वो मैंने इंश्योर किया कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर मुझे शुरू करनी है तो थोड़ा सरप्लस पहले से इकट्ठा करके चलो. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा इनकम फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन वाज मोर देन द इनकम फ्रॉम सैलरी व्हिच आई वाज गेटिंग एट आदित्य बिरला ग्रुप. सो नॉट एवरीवन हैज दिस लग्जरी ऑफ हैविंग अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम व्हिच इज मोर देन देयर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम. अगर आपके पास ये सिनेरियो है तो इट बिकम्स मच ईजियर फॉर यू टू टेक द डिसीजन ऑफ क्विटिंग अ फुल टाइम जॉब एंड गेटिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. सो दैट्स माय वन पीस ऑफ एडवाइस कि जब भी आप क्विट करोगे आपका फुल टाइम जॉब, जस्ट ट्राई टू एंश्योर कि आपके पास कुछ बैकअप या सेफ्टी नेट अवेलेबल हो. फॉर एग्जांपल मेरे केस में कंटेंट क्रिएशन की इनकम एक सेफ्टी नेट है. मेरे डैड का रियल एस्टेट का बिजनेस है, अगर कुछ भी नहीं चला तो आई कैन जॉइन हिज बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, जो कि वेल सेटल्ड बिजनेस है जहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट एंड सेल रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल अपार्टमेंट्स इन नासिक. तो मेरा पॉइंट है कि आपको एक सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक अप लंच. हाउएवर अगर आपके पास सेफ्टी नेट नहीं भी है, अगर आपका बहुत कन्विक्शन है आइडिया पे, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आइडिया चलेगा ही चलेगा, देन यू कैन पैरेलली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया धीरे धीरे while your full time job, and once you hit the product market fit, just immediately quit your full time job and get into fundraise or maybe get into the full time startup and take a plunge into entrepreneurship. All in all, the point of this video is that it's a very very personal decision whether you should continue your job or take a plunge into entrepreneurship. However, success is not a factor of whether you are doing a job or you are into entrepreneurship. Success is a factor of dedication, commitment and consistency in your work ethics, in your work culture. Just because someone is doing a job doesn't mean that they are less ambitious. Just because someone is doing an entrepreneurship doesn't mean they are more ambitious. Everyone is equally successful in their own lives if they are very committed and dedicated and they want to earn that much amount of money. And at the same time, I have seen a lot of people who are super successful working in startups, working in corporates. At the same time, I have seen people who are super successful working as an entrepreneur as well. It's your own personal choice, but at the end of the day, you have to fulfill your stomach needs, you have to fulfill your family responsibilities. So therefore, not everyone has the luxury of taking a plunge into entrepreneurship. So decide your own thing by your own factor, not because a young person who's 24-year-old who has taken a plunge into entrepreneurship, just because he has done that doesn't mean that you also need to do the same. Take decisions accordingly, talk to your colleagues, talk to your mentors, and finally decide whether you want to do a full-time job or you want to get into entrepreneurship. So I hope this video was useful for all of you in order to decide अगर आपको job करना है, entrepreneurship करना है. At the same time, I'd like to mention that जो भी होगा आप successful पक्का बनोगे if you are dedicated, consistent, and motivated to do what you like. So that is something which is a message which I want to give all of you. Thank you so much for watching this video. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.